Good day to all of you and very warm welcome to my channel. My name is Harita Sadrani. I am explaining you the State Board Standard 4th History subject Shiva Chhatrapati. Till now I have completed 4 lessons in my videos. So if you have missed any of my explanatory video, so please do subscribe to my channel. Channel name is Harita Sadrani, and so that you will get the old videos also and the new videos also. So now let us start with our next and new chapter, lesson number 5, Shivaji's childhood. Lesson number 5, Shivaji's education. In last lesson, that is lesson number 4, we have read about birth of Shivaji. The date of birth was 19th February 1630. We have read that the earlier days of Shivaji's childhood was very unsafe and was not peaceful. Shahaji Raje went to Bangalore after signing the Treaty of Peace with Mughal Emperor Shah Jahan and Adil Shah. Shahaji Raje went to Bangalore or Karnataka to conquer the territories in Karnataka. Later on, Jizabai and Shivaji also went to Bangalore. In this chapter, in lesson number 4, we will read about Shivaji's education and also what role Jijabai played in building up the future Raje of Maharashtra, that is Shivaji Maharaj. Now let me explain you this lesson. Lesson number 5, Shivaji's education. First paragraph, beginning of Shivaji's education. Shahaji Raje himself was a scholar of Sanskrit. Shahaji Raje, father of Shivaji, was a scholar of Sanskrit. Sanskrit language was that time the Sanskrit was the only language in which the education was given. Many books, many religious books were written in Sanskrit language. Okay, so Shahaji Raje, father of Shivaji, was the scholar of Sanskrit language. Objective question asked in exams. In the Bangalore court, he refers to Shahaji Raje. He had under his patronage artists and scholars of various language. We have read in last chapter that Shahaji Raje has made Bangalore city as his headquarters and formed there or established a court इन बैंगलोर सिटी, राज्यसभा. उन्होंने अपनी एक राज्यसभा या राजमहल बना लिया था वहाँ पर. राइट, इन दैट कोर्ट ही हैड मैनी आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज. पैट्रोनेज मीन्स in his protection or in his aid, support. Okay, in Hindi we can say ashray or sanrakshan. In those days, the kings were used to keep many of the artists or scholars of different branches in their court. The reason was that कि एक तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए और उससे उनकी दरबार की शान बढ़ती थी. जैसे अकबर के इसमें 9 रत्न थे, राइट, सबको पता है, उसमें से एक थे बिरबल. तो उनकी दरबार की शान बढ़ती है. और दूसरा, राजा अपने अगर कोई अच्छा लेखक है तो उससे अपने जीवन के बारे में, उसके जीवन में जो कुछ हुआ है उसके बारे में उस लेखक से लिखवा सकता है. अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो उससे अपना वो चित्र बना सकता है. राइट, तभी कैमरास नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो फ़ोटोज़ कैसे निकालेंगे? किसी आर्टिस्ट या किसी अच्छे चित्रकार से वो निकाल सकते थे. तो ऐसे लोगों को, जो आर्टिस्ट थे, जो स्कॉलर्स थे, उनको राजा हमेशा अपने दरबार में या अपने पैट्रोनेज में रखते थे. ही अगेन फॉर शाहाजी राजे अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी. शाहाजी राजे हैज़ अपॉइंटेड या उन्होंने बहुत सारे
स्कॉलर्स टीचर्स को रखा शिवाजी महाराज को पढ़ाने के लिए. Shivaji's education began when he became 7 years old. Almost when we go in our first standard, at that age only Shivaji started his education. Soon Shivaji became skilled in the art of reading and writing. But very soon Shivaji got very skilled. Skilled मतलब बहुत होशियार हो गए या बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखना और पढ़ना सीख लिया. He began to read stories from रामायण and महाभारत. वो उन्होंने इतना अच्छा पढ़ना लिखना सीखा था कि बड़े बड़े ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण उन्होंने खुद से पढ़ना सीख लिया. रामायण, महाभारत and भागवत on his own. He started reading all the big religious books on his own. To teach him warfares, Shahaji Raje had appointed some teachers. Okay? Warfares means युद्ध कला, वॉर टैक्टिक्स. ओके, युद्ध कला सिखाने के लिए शाहजी राजे ने बहुत सारे टीचर्स को रखा था. वाई युद्ध कला सीखने के लिए? द रीज़न इज़ दैट शाहजी राजे कौन थे? एक सरदार थे, एक राजे थे, राइट? और शिवाजी उनके बेटे थे. तो ऑब्वियस है आगे चल के शिवाजी को भी बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़ेंगे. वो आगे जाके एक सरदार बनेंगे, फिर राजा भी बन सकते हैं. तो एक राजा, एक सरदार को, एक सैनिक को युद्ध कला आनी ही चाहिए. तो इसके लिए उनको युद्ध कला सिखाने के लिए बहुत सारे टीचर्स भी रखे गए थे. दे बिगैन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स, टू रेसल, टू यूज सॉर्ड्स एंड दानपट्टा. इन सब टीचर्स ने उनको वॉरफेयर सिखाया, युद्ध कला. और उसमें क्या सिखाते थे वो? टू राइड अ हॉर्स, घुड़सवारी. उस समय घुड़सवारी बहुत ज़रूरी थी बिकॉज द ओनली वे of transport was horse or other animal, and horses were mainly used in wars. Wrestling और wrestle कुश्ती करना. wrestle मतलब कुश्ती, क्योंकि अगर आपके हाथ से हथियार छूट जाता है या गिर जाता है तो आप शत्रु से कुश्ती करके भी युद्ध कर सकते हो. To use sword, तलवार, दानपट्टा. Okay, you can see the image given in your textbook, page number 17, same page. Okay, the teachers are standing behind and they are giving training to Shivaji how to use the different war weapons. कैसे war weapons या arms को हम use कर सकते हैं under the supervision of Shahaji Raje. This is the image of Danpatta given in your textbook, history textbook, page number 34. Just like a तलवार. ओके, तलवार जैसी है बट थोड़ी लंबी और एकदम पतली होती है. ओके, thus at the age of 12 Shivaji became acquainted with different branches of learning and arts. बहुत छोटी उम्र में 12 साल में at the age of 12 शिवाजी became well acquainted. acquainted मतलब परिचित हो गए. ओके, उनकी पहचान होगी कि कैसे शस्त्र मुझे यूज़ करने हैं, कैसे मुझे उनको चलाना है, उससे उनकी पहचान होगी. उन्होंने सीख लिया. इन शॉर्ट ही लर्नड मैनी थिंग्स एंड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट. Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the states of Nayaks, the local chief in Karnataka. Shahaji Raje was working under Adil Shah as per the treaty of peace signed by Shahaji Raje with Mughal Emperor Shah Jahan. So when Shahaji Raje started gaining the power and the fame again in the southern part of India, in the state of Karnataka, Adil Shah was getting afraid or he was worried. आदिल शाह को फिर से डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, फिर से शाहजी राजे उतना ही फेमस हो रहे हैं और उतने ही पावर में आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए वो पलटवार मुझ पे करे, फिर से मुझ पे आक्रमण कर दे. इसी डर के मारे आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर से दूर रखने के लिए या उनको इस सब चीज़ों से दूर रखने के लिए, एक राजा जैसे वो अपना राज्य चला रहे थे बेंगलोर में, उससे दूर रखने के लिए
उन्होंने आदिल शाह ने शहाजी राजे से कहा कि आप अभी और स्टेट को कॉन्कर करो, जो लोकल चीफ्स है या नायक्स की टेरिटरी को आप कॉन्कर करो इन कर्नाटका में। उनको युद्ध पे भेज दिया। एक्सपेडिशंस मतलब मुहिम, युद्ध पे भेजना, बड़ी लंबी लड़ाई पे भेजा उनको। ओके, एक्सपेडिशंस, लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर टाइम, बहुत लंबा युद्ध चलता है। ओके, बिफोर setting out upon the expeditions, Shahaji Raje sent Shivaji and Jizabai to Pune. शहाजी राजे को पता चल गया था कि अब मेरा बच्चा और मेरी वाइफ अब यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे, या उनको उतना आदर सम्मान नहीं दिया जाएगा बेंगलोर में मेरे जाने के बाद। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी को पुणे वापस भेजने का निर्णय लिया। With them, he sent elephants, horse and infantry, a treasury, a flag, as also trusted ministers, brave generals and renowned teachers. अब शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी को वापस भेजने का निर्णय लिया। एंड ही सेंट विद देम एलिफेंट्स, हॉर्स, ये सब ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने उनके साथ भेजी। इन शॉर्ट, इन्फेंट्री मतलब लोग होंगे, नौकर चाकर, वो सब, खाने पीने का सामान, वो सब। ट्रेजरी मतलब हम बोल सकते हैं खजाना, हीरे जवाहरात, राइट, जो हम नॉर्मली टूर पे अपने साथ लेके जाते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सब हम लेके जाते हैं। और फ्लैग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैग से समझ में आता है दुश्मन को या दोस्तों को कि किस राजा की सेना या किस राजा की सवारी चल रही है। ओके, तो फ्लैग वॉज अ सिंबल कि ये फ्लैग किसका है, ये किस राजा का फ्लैग है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और फ्लैग हमेशा राजा की सेना के आगे चलता है। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा, राइट, फ्लैग हमेशा होता है जहाँ पे एक राजा के राज्य की चिन्ह होता है, जिससे पहचान लेते हैं कि किस राज्य की सेना जा रही है, राइट। और ट्रस्टेड मिनिस्टर, ऑब्वियसली अगर शिवाजी और जीजाबाई पुणे जा रहे हैं तो उनके साथ मिनिस्टर्स भी जाएंगे, बट ट्रस्टेड, विश्वासु, जो लॉयर है, जो ऑनेस्ट है वैसे। ब्रेव जनरल्स, सरदार, सिपाही, ओके, इन लोगों को भेजा। और एंड रिनोवेंट टीचर्स, और सभी टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स, स्कॉलर्स को भी भेजा। वाई? क्योंकि शिवाजी का एजुकेशन अभी बाकी था, शिवाजी महाराज की पढ़ाई अभी बाकी थी। ओके, तो ये समझ में आया ये पैराग्राफ आपको? गुड। रिजुविनेशन ऑफ पुणे। रिजुविनेशन मीन्स कायाकल्प, टू रिकन्स्ट्रक्ट, फिर से बनाना, जो उद्ध्वस्त हो गया है, जो टूट गया है, उसको फिर से बनाना या फिर से उसको स्थापित करना। ओके, Jizabai and Shivaji returned to Pune. We have read in this paragraph that before going to an expedition, Shahaji Raje had sent back Shivaji and Jizabai to Pune. Okay, so they are now returning back to Pune. Shivaji remembered his childhood days which he had spent on Shivneri. जैसे जैसे वो पुणे की तरफ जा रहे थे, शिवाजी महाराज को अपने बचपन की यादें आने लगी, बचपन की याद आने लगी, जो उन्होंने बचपन बिताया था, इनिशियल 6 साल या 7 साल अपने बचपन के, वो उनको याद आने लगे। उन्होंने किस किले पे अपने इनिशियल बचपन की दिन बिताए थे? शिवनेरी फोर्ट पे, अपने दोस्तों के साथ जो उन्होंने खेल खेले थे या जो कुछ उन्होंने सीखा था शिवनेरी पे, उनको सब याद आने लगा। He would see the lofty peaks of Sahyadri again and he became very happy. जैसे जैसे धीरे धीरे पुणे में एंट्री हो रही थी, महाराष्ट्र में उनकी एंट्री हो रही थी, उनको सह्याद्री माउंटेन रेंज दिखाई देने लगा। सह्याद्री एक माउंटेन रेंज है जो वेस्टर्न घाट्स में है, वो उनको दिखाई देने लगे। पर्वत, हम कह सकते हैं पर्वतों की पर्वतमाला, सह्याद्री एक पर्वतों की माला है जो वेस्टर्न घाट्स पे है, वो उनको दिखने लगे और वो बहुत खुश हो गए। लॉफ्टी मीन्स बहुत बड़े बड़े या बुलंद, ऐसे पीक्स मतलब
पर्वत की चोटी, पहाड़ की चोटी, बहुत बड़े बड़े या बुलंद पहाड़ों की चोटी, किस पहाड़ों की चोटी उनको दिखाई देने लगी? सह्याद्री। ओके, और उसे देखकर शिवाजी बहुत खुश होने लगे। पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच अ बिग सिटी। उस समय जो पूना था या पुणे सिटी इतनी बड़ी नहीं थी या इतनी मॉडर्न नहीं थी जैसी अब है। वो एक छोटा सा शहर था। इट वॉज टोटली devastated by शाहाजी राजेज एनिमी। डेवेस्टेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड, तहस नहस कर दिया था। किसने तहस नहस कर दिया था? याद है आपको? यस, यू आर राइट। किसने किया था तहस नहस? हाँ, आदिल शाह ने। जब शाहाजी राजे आदिल शाह को छोड़कर निज़ाम शाह के पास गए थे, तब शाहाजी राजे से बदला लेने के लिए आदिल शाह ने उनके जो पुणे शहर को जला दिया था, बर्न किया था, राइट। तो वो बहुत ही तहस नहस हो गया था, या पूरा हम बोल सकते जो शहर को बर्बाद करके रखा था। किसने? शाहाजी राजेस के एनिमीज़ के। ओके, प्रॉपर्टी वर डैमेज, हाउसेस वर demolished. Temple had collapsed. The frightened people had fled from their villages. Fields had become barren. Thick forest had grown. Wolves roamed in the countryside. Pune thus was totally in shambles and ruin. This paragraph tells you what was the condition of Pune city when Shivaji and Jizabai returned back from Bangalore. As we know that Adil Shah and the other enemies of Shahaji Raje had destroyed the Pune city. So, the property of the city was totally damaged. Houses were demolished. Demolish means तोड़ दिए, दुश्मन के अटैक ने या दुश्मनों ने उनको तोड़ दिया था। डिमोलिश मतलब तोड़ना, टू डिस्ट्रॉय, ब्रेक डाउन। कोलैप्स मीन्स मंदिर टेम्पल्स हैड कोलैप्स, मंदिर अब टूट गए थे या उनको तोड़ दिया गया था। द फ्राइटन पीपल फ्लाइड फ्रॉम देयर विलेजेस, डरे हुए सहमे हुए लोग अब अपने गांव को, पुणे शहर को छोड़ के भाग गए थे। फ्लाइड मीन्स भाग जाना या भाग गए। फील्ड वर बैरन, जिस जगह पर खेती बाड़ी का काम होता था, ओके, खेती की ज़मीन थी जहाँ पर खेती का काम होता था, अब वहाँ पर कुछ भी, मतलब वो अभी बंजर हो गई है वो ज़मीन, क्योंकि अब वहाँ पर लोग ही नहीं है जो खेती का काम कर सके। तो बैरन मतलब बंजर। थिक फॉरेस्ट हैज़ ग्रोन, पुणे सिटी और उसके जहाँ आजू बाजू में या घरों के आसपास अब एक जंगल बढ़ गया था, एक जंगल जैसा हो गया था। वुल्फ्स रोम्ड इन द कंट्री साइड, वुल्फ्स मतलब भेड़िए, ओके, भेड़िए अब जंगली जानवर, भेड़िए भी अब पुणे सिटी में घूमने लगे थे, क्योंकि अब वो सिटी नहीं रहा, अब वो जंगल हो गया था, तब जंगली जानवर भी वहाँ पर आने घूमने लगे। कंट्री साइड मीन्स गाँव, पुणे शहर के साइड में जो गांव रहेंगे अब वहाँ पर जंगली भेड़िए घूमने लगे। पुणे वॉज टोटली इन सैम्बल्स एंड रूइन, अब पुणे पूरी तरीके से एक खंडर बन गया था और बहुत ही बुरी हालत हो गई थी पुणे सिटी में, पुणे सिटी की, जब शिवाजी और जीजाबाई वहाँ वापस लौटे थे। We have read in earlier paragraph that what was the condition of Pune city, right, when Jizabai and Shivaji Maharaj came back. Now, in this paragraph, we will come to know what the people felt, what the local people felt on returning back of Jizabai and Shivaji Maharaj to Pune. लोगों ने कैसा रिएक्ट किया जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज, शिवाजी फिर से पुणे में आए तब, ओके। When the people living around came to know that Jizabai had returned to Pune with Shivaji, they took hearts. जब लोगों को ये पता चला कि अब जीजाबाई और शिवाजी वापस आ गए पुणे में, तो उन्हें अच्छा लगा, उनकी जान में जान आ गई। टुक हार्ट मीन्स जान में जान आना, अच्छा लगा, राइट। क्यों अच्छा लगा उनको? क्योंकि अब उनको लगा कि ओके, अब कोई तो है जो हमें दुश्मन से बचाएगा,
या कोई तो ऐसा आ गया है जो हमारे पुणे शहर को फिर से पुनर्जीवित करेगा, फिर से उसको उसे नए रूप रंग में ढाल देगा। ओके, तो लोगों को अच्छा लगा या उनकी जान में जान आ गई जब उन्होंने देखा कि जीजाबाई और शिवाजी वापस आए हैं। जीजाबाई called all of them and reassured them that they would be safe in Pune. जीजाबाई ने तुरंत लोगों की सभा बुलाई, लोकल पब्लिक को बुलाया और उनको एक आश्वासन दिया या भरोसा दिलाया। रीअश्योर्ड मीन्स भरोसा देना या आश्वस्त करना। ओके, उनको एक भरोसा दिलाया कि अभी आप और आपका पुणे शहर दोनों भी सेफ है। अब आपको कोई भी पुणे से वापस भगाएगा नहीं और ना ही आपके पुणे शहर को कोई फिर से बर्बाद करेगा। ये उन्होंने लोगों में भरोसा दिलाया। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे, कल्टिवेटिंग देयर लैंड्स। जब लोगों ने देखा कि यस, अब जीजाबाई आ गई है शिवाजी राजे के साथ, उनके साथ सरदारों की एक ग्रुप भी आया है, तो अब उनको किसी से कोई डर नहीं है। अब वो दुश्मनों से उनकी सुरक्षा होने वाली है। तो धीरे धीरे लोग आकर पुणे शहर में बसने लगे और फिर से अपना जो खेती का काम था वो करने लगे। मतलब उन्होंने अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी पुणे शहर में आके जीना शुरू कर दिया, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी शुरू हो गई और पुणे वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में धीरे धीरे आने लगा। जीजाबाई हैड द dilapidated temples repaired. जो टेम्पल्स बर्बाद हो गए थे, जो टेम्पल्स टूट गए थे, उनको उन्होंने वापस से रिपेयर करवाया। dilapidated मतलब टूट गए थे या बर्बाद हो गए थे, वैसे मंदिरों को उन्होंने वापस से रिपेयर किया। इन द टेम्पल्स वर्कशिप बिगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मंदिरों में अब फिर से पूजा पाठ होने लगा। द टाउन्स वॉज अगेन थ्रोबिंग विद पीपल, दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफर। अब पुणे शहर जो बंजर हो गया था, जहाँ पर जंगली जानवर घूमते थे, एक जंगल की तरह वो शहर जो हो गया था, अब फिर से वो लोगों से भर गया। थ्रोबिंग मीन्स धड़कने लगा। ओके, आपने साइंस में ये पढ़ा होगा वर्ड थ्रोबिंग। ओके, थ्रोबिंग मीन्स धड़कना। शहर की ज़िंदगी वापस आ गई। ऐसे पुणे शहर की ज़िंदगी वापस कब आती है? जब लोग वहाँ पर आकर बसने लगते हैं या लोग जब वहाँ पर रहते हैं। तो धीरे धीरे पुणे शहर की पूरा काया कल्प हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, चेंज होने लगा। जो बर्बाद सिटी थी अब वो फिर से एक हरी भरी या खुशहाल सिटी में परिवर्तन होने लगा उसका। In this paragraph, we will come to know about one of the most famous Maratha Sardar who worked for Shahaji Raje. Okay, Dadaji Kondev, right? The achievements of Dadaji Kondev. When Jizabai and Shivaji were in Karnataka, Dadaji Kondev looked after the Pune Jagir. We know that Shivaji, Jizabai and Shahaji Raje all three were in Karnataka, in Bangalore. And the Jahagir, which was given to Shahaji Raje by Adil Shah after signing the Treaty of Peace, given to Shahaji Raje. Okay, but later on, Adil Shah asked Shahaji Raje to conquer the districts or the territories in Karnataka. So, Shahaji Raje made in charge of the Pune Jahagir whom Dadaji Kondev. Okay, so the Pune Jahagir was looked after by Dadaji Kondev. He was Subedar of Kondhana also. वो कोंढाणा किले या कोंढाणा फोर्ट के सूबेदार थे। सूबेदार मीन्स पर्सन हु लुक आफ्टर द फोर्ट। ओके, हेड ऑफ द फोर्ट या जिसके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है फोर्ट का। ही वॉज वेरी फेथफुल, ही वॉज स्ट्रिक्ट, एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट इन हिज वर्क। नाउ क्वालिटीज़ ऑफ दादाजी कोंडेव। कैसे थे वो? बहुत ही फेथफुल थे, बहुत ही सिंसियर थे, राइट, आज्ञाकारी थे, स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही
कड़क स्वभाव के थे, एफिशिएंट थे, बहुत काबिल थे, एंड ऑनेस्ट मतलब बहुत ही अपने वफादार थे वो अपने काम के प्रति। ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर। जस्ट मतलब न्यायप्रिय, किसी के साथ भी न्याय करते थे, अन्याय नहीं होने देते थे। ओके, जस्ट मतलब न्यायप्रिय। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर मतलब वो कानून या रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही कड़ी तरीके से उसका पालन करते थे। वो लोगों से भी बहुत कहते थे कि आप भी रूल रेगुलेशन का पालन करो और ख़ुद भी उतने ही मन से या उतने ही कर्तव्यनिष्ठ से डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। बहुत ही डिसिप्लिन मतलब बोलते हैं ना जो अनुशासन में रहते हैं, राइट, वैसे थे वो। ही सर्व्ड विथ डिवोशन। वो सर्व यहाँ पे ही सर्व्ड मतलब दादाजी कोंडेव किसको सर्व करते थे? शहाजी राजे को। सर्व मतलब किसकी सर्विस में थे, किसकी एम्प्लॉयमेंट में थे? शहाजी राजे। कैसे उन्होंने काम किया? बहुत ही डिवोशन के साथ, बहुत ही भक्ति भाव के साथ या बहुत ही मन लगाकर उन्होंने अपना काम किया है। At about this time, a big vada or residence was built in Pune by the order of Shahaji Raje. Okay, when Jizabai and Shivaji returned back to Pune, Dadaji Konde has already constructed a big residence. Residence मतलब एक महल या उनके रहने के लिए जगह उन्होंने पुणे में बना के रखी थी। किसने? दादाजी कोंडेव ने। इट केम टू बी नोन एज लाल महल। उसका नाम क्या रखा? लाल महल। ओके, ये उन्होंने किसके लिए तैयारी करके रखी थी? जीजाबाई और शिवाजी के लिए, कि जब वो बेंगलोर से वापस आएंगे तब उनके रहने के लिए जो जगह उन्होंने बनाई पुणे में, उसका नाम या उस महल का नाम क्या रखा? लाल महल, राइट। नाउ व्हाट वर्क दादाजी कोंडेव डिड इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। टू एनकरेज द peasant to till their lands, Dadaji gave them concession in land tax for a few years. Okay, now when Jizabai came forward and asked the people to come back and settle in Pune again and start doing their activities, day-to-day activities, start cultivating their lands, and the people who came back to Pune and started doing their work, started cultivating the land, for them the special concession were given in टैक्स, लैंड टैक्स। कौन सी टैक्स में? लैंड टैक्स। ओके, इसे हम बोलते हैं लगान। ओके, लगान में उन्होंने कंसेशन मतलब छूट दी, ताकि जो पीसेंट मतलब हम उसे बोलते हैं किसान को encourage करने के लिए कि आप आओ और खेती करो। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे स्कीम निकालते हैं किसानों के लिए, ताकि बहुत सारे लोग आगे आके खेती बाड़ी का काम करें या उससे रिलेटेड कोई भी काम हो वो करें, राइट। He offered prize for destroying the wolves which inflated the countryside and harassed the peasants. और उन्होंने एक और काम किया, जब जीजाबाई और शिवाजी लौटे थे तब कैसा था पुणे? एक बंजर था, जंगल की तरह था। वहाँ पर जंगली जानवर, स्पेशली कौन? भेड़िए घूमते थे और लोगों को परेशान करते थे। तो अब इन भेड़ियों से कैसे छुटकारा पाए? तो उन्होंने एक बोलते ना एक ट्रिक लगाई या युक्ति की। क्या उन्होंने एक ट्रिक की कि लोगों को कहा कि जो भी इस भेड़ियों को या वुल्फ को मारेगा उसको हम प्राइज़ देंगे, क्योंकि ये वुल्फ जो थे लोगों को परेशान करते थे और उनकी खेती और उनके फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाते थे, राइट। मैनी वुल्फ्स वर किल्ड। इस प्लान के हिसाब से प्राइज़ मिलेगा अगर आप वुल्फ को मारोगे तो बहुत सारे वुल्फ्स जो थे, जंगली भेड़िए जो थे, मारे गए। ओके, ही रेज peasant patrols to protect life and property from the gangs of thief who roamed in the countryside. और एक काम किया उन्होंने, इतने सैनिक बल तो उनके पास नहीं थे कि जो डाकू है, जो लोगों को लूटते हैं या जो बाहर से आके यहाँ पर दंगा करते हैं पुणे शहर में, उनसे कैसे बचा जाएगा। तो उन्होंने जो पीसेंट थे, जो किसान थे, उनकी ही एक टोली बनाई जो पेट्रोलिंग्स करेंगे। पेट्रोलिंग्स मतलब रात को पहरा देंगे
या दिन को पहरा देंगे, ऐसे टोलियाँ बनाई कि कुछ रात को पहरा देंगे तो कुछ दिन को पहरा देंगे, ताकि जो थीव्स मतलब जो चोर थे या जो डाकू थे, जो कंट्री साइड में या पुणे के शहर में या उसके आसपास के गांव में लूट मचा के रखी थी, उनको रोका जा सके या उनको हम पकड़ के दंड कर पनिशमेंट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसानों की ही टोली बनाई जो रात और दिन को पहरा दे सके। ही फिक्स द लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। उन्होंने एक और चीज़ की, देखो तभी के ज़माने में ये सब चीज़ें की है जो आज भी वर्कआउट होती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स या लगान कैसे फिक्स किया, ज़मीन की या धरती की जिस पे खेती होती है उस एरिया की या उस धरती की या मिट्टी की, इन इजी वर्ड, मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते उसका टैक्स फिक्स किया गया। अगर आपकी जो उपजाऊ ज़मीन है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, तो आपको उस हिसाब से टैक्स भरना है। अगर किसी की ज़मीन कम उपजाऊ है तो उससे उसके हिसाब से टैक्स कम या कुछ कंसेशन के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स रेवेन्यू है, जो लैंड रेवेन्यू मतलब ये ही हम बोल सकते हैं लाइक इनकम, गवर्नमेंट का इनकम कैसे होगा, टैक्स रेवेन्यू से, राइट। तो ये कैसे फिक्स किया, अकॉर्डिंग टू द सॉइल, क्वालिटी ऑफ द सॉइल। He thus made people happy in the field of agriculture, reforms and revenue collections. The work done by Dadaji Kondev and Nizam Shahi Wazir Malik Ambar is considered to be very important. तो उस ज़माने में निज़ाम शाह के अंडर जो वज़ीर थे मलिक अंबर, उनका काम और दादाजी कोंडेव ने जो काम किया रिगार्डिंग टू टैक्स कलेक्शन या टैक्स रेवेन्यू टैक्स या लैंड टैक्स या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मतलब एग्रीकल्चर में नए नए जैसे उन्होंने कुछ छूट दी या लोगों को जैसे कहा कि हम लोग लैंड कल्टीवेशन में हम आपको टैक्स में कंसेशन देंगे, आपकी क्वालिटी को टेस्ट करके ही, लैंड क्वालिटी को टेस्ट करके ही आपको टैक्स का अमाउंट बताया जाएगा। वो सब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आए। ये जो भी उन्होंने काम किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उस ज़माने में और उसे आज भी हम फॉलो करते हैं। ये फॉर्मेट आज भी हम फॉलो करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ था जहाँ पर एक ऐसे सरदार की स्टोरी बताई गई है या उसकी क्वालिटीज़ बताई गई है, उसके काम के बारे में बताया गया है जो आज भी हम फॉलो करते हैं, जो आज भी बहुत जगह पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसमें से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं। ये पैराग्राफ दादाजी कोंडेव गेव टैक्स रिफॉर्म्स, क्यों उन्होंने टैक्स कंसेशन दिया या कैसे टैक्स कंसेशन दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर्स इसमें से निकल के आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, शिवाजी's एजुकेशन। व्हेन शिवाजी returned to Pune, his education continued under the supervision of Jizabai. Okay, so when Shivaji came back to Pune with his mother, his education was not stopped. Okay, he was still learning. उनका एजुकेशन चल रहा था, उनकी पढ़ाई चल रही थी, बट नाउ अंडर द सुपरविजन ऑफ शिवाजी's मदर जीजाबाई। बेंगलोर में कौन सुपरविजन कर रहा था, उनके फादर शहाजी राजे। बट आफ्टर कमिंग बैक टू पुणे, उनकी पढ़ाई पे कौन नज़र रख रहा था, उनकी मदर जीजाबाई। While returning from Bangalore, Jizabai and Shivaji had accompanied by eminent teachers sent by Shahaji Raze. We have read that कि जब वो वापस आए पुणे, तब शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी के साथ टीचर्स को भी भेजा था जो उनको बेंगलोर में पढ़ा रहे थे, या जो फेमस टीचर्स थे उनको इन लोगों के साथ पुणे शहर में भी भेज दिया गया था। एमिनेंट मीन्स जो प्रतिष्ठित थे, जो फेमस थे, वैसे टीचर्स। दे taught him many sciences, branch of learning and language. वही सब चीज़ वो भी
शिवाजी जी को सिखाते थे पुणे में, जो उन्होंने उनको बैंगलोर में सिखाया। शिवाजी acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, fort architecture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy territories, and many other things. Shivaji's progress in education pleased Jizabai very much. Now, what Shivaji learned, what एक्चुअली शिवाजी महाराज ने क्या सीखा, वो इस पैराग्राफ में दिया है। शिवाजी महाराज एक सरदार थे या होने वाले सरदार थे, मराठा सरदार, होने वाले राजा भी थे, राइट। तो उनको क्या क्या सीखना ज़रूरी था। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे राजपाट का काम किया जाता है। वॉर टैक्टिक्स, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध के बारे में जानकारी उन्होंने ली। फोर्ट आर्किटेक्चर, फोर्ट मीन्स किले, किले कैसे बनते हैं, कैसे क्या क्या ध्यान दिया जाता है किलों पर बनाते समय, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, मतलब उन्होंने एक आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई की। सेलेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट, यस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी सीखने के लिए तभी, क्योंकि युद्ध में लड़ने के लिए घोड़ों की और हाथियों की बहुत ज़रूरत होती थी, राइट, जिस पे या तो उनको युद्ध भूमि में लड़ाई के लिए लेके जाते थे या घोड़ों और हाथियों पर युद्ध का सामान कैरी भी होता था। तो इसका सिलेक्शन होना या कैसे इसको बेस्ट क्वालिटी के हम सेलेक्ट कर सकते हैं एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, उसकी भी ट्रेनिंग ली। और सबसे ज़रूरी बात उन्होंने और एक सीखी, वो थी कैसे दुश्मन की टेरिटरीज से अगर कभी हम पकड़े गए, दुश्मन के हाथ लग भी गए, तो हम कैसे दुश्मन से भाग सकते हैं या कैसे दुश्मन से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, कैसे दुश्मन की आंखों में हम धूल झोंक सकते हैं, कैसे उसको मूर्ख बना के हम भाग सकते हैं, उसके भी टैक्टिक शिवाजी महाराज ने सीख लिए। और जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसे देखकर जीजाबाई बहुत ही प्रसन्न थी, या वो बहुत ही हैप्पी थी। प्लीज़ मतलब हैप्पी या प्रसन्न, खुश थी। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन में आ सकता है कि शिवाजी महाराज ने क्या क्या सीखा अपने एजुकेशन टाइम में, व्हाट नॉलेज ही एक्वायर्ड in his education. Okay, so with this we will come to an end of this part. The remaining part of this lesson I will explain you in the next video, because it takes a lot of time for me to upload the video. So if you have liked my explanation, so please share it, like it, and subscribe my channel, and without fail click on the bell icon so that you will get my latest study video. So that's all for today. Take care. Bye bye. Thank you.